Okay, let's start. How are we going to work it on over the React application? So first of all, जो हमने virtual reality के ऊपर बनानी थी या जो 360 viewer होता है और इसके ऊपर. So we are going to use 2 and 3 different functions with these kind of things. So I'm going to create a new project of the React. Intelligent idea and the things that we are going to use for creating a new project, it depends on how we're gonna make it work and how we're gonna not. तो बताने का मकसद ये है कि जब हम एक प्रोजेक्ट की उसकी साइड पे अब जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि मार्केट बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, तो आई एम गोइंग टू लेट यू नो हाउ यू गोना मेक अ मार्केट बेस्ड प्रोजेक्ट थ्रू द डिफरेंट थिंग्स, React app, React native, and first of all we are going to select the React app because हम React की एप्लीकेशन को ही क्रिएट करने जा रहे हैं. अब before we are going to use the name, तो मुझे इसका यहाँ पे जो नाम क्रिएट करना है, जो नाम रखना है, वो मैं इसका नाम VR रख दूँगा क्योंकि we are going to create things that we need to create a TypeScript of the project. Yes, we need it. Okay, done. We are going to use the VR. Root is key मेरे downloads में बन रही है, so I'm going to change it because I don't want to use my downloads for this purpose of the project. तो आपके मेरे ख्याल में documentations में बन रही होती है, so you can change the directory as well. So it's totally up to you where you are going to put your things. So finish. React applications में अब जो हम काम market based में करने जा रहे हैं, it depends on a lot of things that what we are going to deal in and how we gonna deal in things. It's going to start in just a while, and while it's going to be started, so it depends on a lot of things. क्योंकि जो रात को जो update आई है उसकी वजह से it's gonna be slow a little bit. So it's going to be a complete React application. So ये हमें एक complete VR की एक React application बन जाएगी और जब ये application complete बन जाएगी, so we are going to start at work after it. Okay, at the end of the things we found some kind of errors, और ये इसके CLI की configuration errors हैं जहाँ पे हम लोग different modules को initiate कर रहे होते हैं. अच्छा, ये जब errors वगैरह ये जब आते हैं तो initially कुछ चीज़ें generate हो रही होती हैं, जैसे मैं कल बता रहा था कि हम template dependencies view वगैरह ये सारा कुछ करेंगे और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पहले आपने की भी हैं, कुछ आपने नहीं भी की हैं. So it gonna be depends on a lot of things that we are going to use in this project, in this kind of React की एक viewer कहते हैं जो complete applications को डिज़ाइन करने में काम है, यानी कि काम आता है. इसमें जो भी चीज़ें हमें required होंगी, जो भी चीज़ हम उसके साथ अटैच करेंगे या उसको ऐड करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे, वो हम एक-एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे होंगे और उनकी डिपेंडेंसीज जो हैं वो डिफरेंट जगह पे काम भी आती हैं और हम उनको देख भी रहे होंगे. So I'm going to use this thing. मैं अब इसको ओपन करता हूँ. ये commit का आ गया. If I'm going to use GitHub or something like it. Now this is the folder that I'm going to use in the things that we going to need. Public जो हमारे images वगैरह या इस तरह की कोई सारी चीज़ें होती हैं या इस तरह का कुछ भी हो रहा होता है. And these kind of things that we are going to use for the other things as well. अब हमारे पास जो virtual reality है या application है या इसकी कोई भी चीज़ है, वो इस तरह करके डिज़ाइन हो जाती है या इस तरह करके हमने सारा कुछ इसको देख के करना होता है. अब जो अगला जो पड़ाव है जहाँ पे एक्चुअली हमने अगला जो काम है एक्चुअली जहाँ से हम अपनी सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एक्चुअली सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे वर्किंग सारे लोग कर रहे होते हैं या वर्किंग ही चल रही होती है,
तो उसको स्टार्ट करने के लिए हम इसके टर्मिनल में आएंगे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग जो कि हम करने जा रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक yarn global global add react 360 react 360 जिसको कहते हैं CLI। क्योंकि मैं इसको ग्लोबली इस प्रोजेक्ट में करवाने लगा हूँ, तो अगर वो यान इसमें अगर नहीं भी आता, मैं npm या npx इंस्टॉल यान भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको npx या उससे भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं इसको npm से इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो आई हैव अ डिफरेंट ऑप्शंस टू इंस्टॉल अ सिंगल थिंग। क्योंकि मैं कोई भी मॉड्यूल कहीं से भी किसी भी टाइम पे पिक कर सकता हूँ, लेकिन इफ़ आई नीड टू, तो हम इसको डायरेक्ट, अगर यान का इसमें नहीं चलता तो इशू नहीं है, हम इसको उससे भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे भी हम क्रिएट करना चाहें। तो अब इस CLI का जो हम पार्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिस पे हमने वर्किंग वगैरह करनी है, वो है 360 CLI। अब ये ग्लोबली हमें एक चीज़ क्रिएट करके देगा जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है, और कुछ भी इस तरह की जो भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी तो वो इसके अंदर चीज़ें अब क्रिएट करके देगा। ये CLI को इंस्टॉल करने का हमें फ़ायदा ये है कि जो अब हम चीज़ करने जा रहे हैं जिसको हम 3D कहते हैं या हम उसको व्यू कहते हैं, कि हम डिफरेंट तरीके से एक एप्लीकेशन को व्यू कर सकते हैं, जो अभी रिसेंटली फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया था फंक्शन, या डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम उन फंक्शंस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो हम somehow we are going to use the things that we need to। अब मेरे पास आएगा react 360 init project project underscore name, it could be anything that you need to। अब ये हमें क्रिएट करके देगा कि आपने अपना प्रोजेक्ट के जो है वो जो स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है, या हम उस प्रोजेक्ट के साथ कैसे चलेंगे। अब मैं इसको सिर्फ उससे डिफरेंट करने के लिए, जो VR हमने ऊपर बनाया उससे इसको डिफरेंट करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट नेम के साथ उसको ऐड कर दिया है। सो अब ये मुझे वो डिफरेंट चीज़ें भी करके देगा जो एक्चुअली मुझे रिक्वायर्ड हैं भी किसी हद तक और नहीं भी। सो इट डिपेंड्स कि what we need and what we not, what we are not in need। So everything that we are going to use in these kind of projects are totally going to be a different one। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम इस के साथ क्रिएट करेंगे, इसमें डिफरेंट ये कह सकते हो कि डिफरेंट चीज़ें आएंगी। अब वो जितना भी कुछ डिफरेंट होगा, एवरी टाइम दैट वी आर गोइंग टू यूज़ एंड एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू ऐड डिलीट और कुछ भी ऐसा करने जाएंगे, तो वो डिफरेंट तरह के कोड्स में से ही हम सारा कुछ उसमें कर सकते हैं। अब वो जो डिफरेंट तरह का जो कोड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन अस, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। अब हमारे पास जो वही सारा कुछ था, अब उसमें एक ये चीज़ सिर्फ न्यू ऐड हुई और इसमें अब ये जो हमें पैकेजेस फेच करके देगा और ये जो बाकी सारा कुछ होगा, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। अब वो सबसे कैसे डिफरेंट है, या हम इसमें क्या चीज़ डिफरेंट करने जा रहे हैं, या क्या चीज़ इसमें डिफरेंट बनेगी, होगी, वो मैं अब आपको ऐड करके साथ साथ बताता जाऊँगा। हमने ऐसा वैसे डायरेक्टली कोई काम नहीं करना, हमने इसमें जो वर्किंग करनी है दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन द डिफरेंट वे। हम अपने फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं, हम अपने फ़ोल्डर्स को क्रिएट भी करेंगे। दैट्स इट, प्रोजेक्ट नेम का एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट नेम के फ़ोल्डर में ये डेटा है सारा, हमें वो चलाना है, इसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना। हाँ, ये कुछ डिफरेंट ज़रूर है। ये डिफरेंट इस वजह से है कि अब सिर्फ इसकी चीज़ें कॉन्फ़िगर होंगी एट द एंड,
इस प्रोजेक्ट में वो चीज़ें कॉन्फ़िगर होंगी। अब आप हाँ, सोच में ये ज़रूर बात आएगी कि व्हाई वी आर गोइंग टू यूज़ दिस थिंग, जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है या हम उस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो जवाद, वर्किंग हम सब पे कर रहे होते हैं एक्चुअली। हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं वर्किंग करने के लिए, या हम उनको डिफरेंट चीज़ों से अटैच कर रहे होते हैं। लेकिन द बेसिक थिंग इज़ कि अब जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, दैट वाज़ इंट्रोड्यूस ऑलमोस्ट फ्यू मंथ्स अगो। उसके डॉक्यूमेंटेशन भी अभी यानी कि प्रॉपर अवेलेबल भी है किसी जगह पे, लेकिन वो फ़ेसबुक, मेरे ख़्याल में फ़ेसबुक ने उसकी डॉक्यूमेंटेशन किसी फ़ाइल्स में दी ज़रूर हुई है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फाइंड दैट, कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दे दूँ सो यू कैन हैव इट एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ एज़ वेल, कि हम इसमें जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं या काम उसमें कैसे किया जा रहा होता है। सो इसकी जो नॉट के मॉड्यूल्स हैं वो भी अपने आप को खुद से क्रिएट करते जाएँगे, और जो नए मॉड्यूल्स हैं वो भी इसमें ऐड होते जाएँगे। सो वी डोंट इवन नीड टू क्रिएट और ऑन। हाँ, सी इसके अपने नॉन मॉड्यूल्स और उसके नॉन मॉड्यूल्स दोनों डिफरेंट हैं। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो हमने जो चीज़ें करनी होंगी, वो कुछ बस डिफरेंट होंगी। बाकी देयर इज़ नथिंग लाइक टू बी अ डिफरेंट थिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि जो अब हम वर्किंग करेंगे वो हमारे अपने चीज़ों से रिलेट होगी, और जैसे-जैसे जो चीज़ आगे जाती जाएगी हम उसके साथ काम जो है वो करते जाएँगे। हाँ, ये कंपाइलर थोड़ा-सा स्लो डाउन अब ज़रूर होगा, क्योंकि अब इसको जो फ़ंक्शनैलिटीज़ मिल रही होंगी वो टोटल डिफरेंट होंगी, और उन फ़ंक्शनैलिटीज़ की वजह से यहाँ पे बहुत सी चीज़ें भी जो हैं वो भी चलना स्टार्ट हो जाएँगी। सो अब जो भी चीज़ यहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द थिंग जो है वो ऑटोमैटिकली ही लिखी हुई आ रही है। इसको कहते हैं ऑटो, सारा कुछ जनरेट होके वो आ रहा है, और जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो उसकी कंप्लीट ऐप रजिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आ जाती है, विदाउट एनी वर्किंग और विदाउट एनीथिंग एल्स। हमें कोई भी चीज़ खुद से अभी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पे वो आपको कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट मिल जाता है। अच्छा, ये तो था सिंपल एक चीज़ को क्रिएट करने का तरीका, कि हम चीज़ को किस तरह क्रिएट करते हैं, या हम इसको वर्किंग कैसे लेके आते हैं। अब हम आते हैं उस वर्किंग पे जो एक्चुअली हमें रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअली हम लोगों को रिक्वायर्ड है टू मेक इट वर्क। और उस वर्किंग में हम लोग क्या-क्या चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, वो अब हम लोगों को रिक्वायर्ड होगी। ख़ैर इसका तो आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया होगा कि ये एक बिल्ट इन सारी एप्लीकेशन ये बना के देता है, और इसके अंदर बिल्ट इन ही जो 360 वर्ल्ड होता है वो भी नज़र आ रहा होता है। बाकी सारी चीज़ें भी इसके साथ बिल्ट इन ही बनती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वर्किंग इन द डिफरेंट क्राइटेरिया, हम अपने चीज़ों को डिफरेंट तरीके से क्रिएट कर रहे होते हैं, या हम उसको बेसिक वे में देख रहे होते हैं। अब जो वर्किंग हम डिफरेंट जगह पे करते हैं वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट नेम को राइट क्लिक करूँगा। What I am going to do is to add some kind of some components to it। एक मैं इसको कुछ कंपोनेंट्स ऐड करवाऊँगा इसमें। कंपोनेंट्स के ऐड होने से, या कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं हम, फिर उसके साथ इमेजेस उसमें ऐड किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली अब कंपोनेंट्स
पहले ऐड करूँगा, देन मैं उनको फिर आगे जाके मैप करता जाऊँगा। ओके, सो मैं एक डायरेक्टरी ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। उस डायरेक्टरी को हम कहते हैं COMPONENTS, कंपोनेंट्स, और मैंने ये ऐड कर दिया। अब कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास जो पहला एक JS फाइल बनेगी, स्क्रिप्ट फाइल जिसको हम कहते हैं, वो फाइल मैं बनाऊंगा FLAG फ्लैग के नाम से। मतलब इसमें मुझे सिर्फ स्टॉपर्स देने हैं। स्टॉपर्स होता है कि जब हम किसी फाइल को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। अब वो स्टॉपर्स क्या होते हैं? जो चीज़ हमने अपनी वर्किंग में दी होती है, हम उसी को इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे import react from, जैसे आप लिखते हो अपने डिफरेंट फंक्शंस को, तो यहाँ पे मैं करूँगा react, from react। अच्छा, ये आ गया। अब फ्लैग में हमने जो स्टॉपर्स लिखने होते, जैसे मैंने कहा, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ जो हम एक्चुअली लिख रहे होते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा ऐप REGISTRY रजिस्ट्री, ऐप रजिस्ट्री। हम ऐप रजिस्ट्री को करते हैं, और यहाँ पे मैं साथ दे देता हूँ एसेट्स और STYLE स्टाइल शीट, जो आपने एक्चुअली मुझे कल बताया था अबाउट द स्टाइल शीट्स जो हम यूटिलाइज करते हैं, और इमेज, जो भी चीज़ मुझे अपलोड इसके साथ करनी है या जो भी चीज़ मुझे इसके साथ रिक्वायर्ड है, इमेज आ जाएगा। कहाँ से आएगा? सो आई एम गोइंग टू fetch from the things that is React-360। इसका अगर वेब इंटरफेस बनाना होगा तो हम वेब करेंगे। अभी हम सिंपल एक एप्लीकेशन इंटरफेस बना रहे हैं, तो मैं खाली इसको 360 पे करूँगा। फिर हम इसका वेब इंटरफेस भी देखेंगे कि हाउ वी गोना क्रिएट अ वेब इंटरफेस। तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट क्या करूँगा? डिफ़ॉल्ट क्लासेस, जिसमें मेरे पास क्या होगा? फ्लैग, लेकिन एक्सटेंड्स कहाँ से हो रहा होगा? एक्सटेंड मैं कहाँ से उसको करूँगा? रिएक्ट के कंपोनेंट से, react dot components, react dot components। अब react component से मुझे इसको एक्सपोर्ट करने का क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा मुझे ये है कि मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट आके रेंडर होगी, उसमें मेरे पास कांस्टेंट एक फ्लैग वेरिएबल होगा। अब यहाँ पे फ्लैग एज अ वेरिएबल है, जिसको हम असाइन करेंगे style स्टाइल। अब स्टाइल एज अ टैग भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे स्टाइल एज अ टैग नहीं चाहिए, मुझे स्टाइल चाहिए एज अ ऑब्जेक्ट। दैट्स इट, मुझे स्टाइल चाहिए एज अ ऑब्जेक्ट। मैं अब इसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल करता हूँ। अब एज अ ऑब्जेक्ट जब मैंने इसको कॉल किया, तो मुझे एक और कांस्टेंट चाहिए। अभी उसका वायरल ठीक हो जाएगा कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट में मुझे एक एक्टिव फ्लैग चाहिए। अब ये जो एसेट वेरिएबल है एक्टिव फ्लैग का, ये मुझे सिर्फ फेच करवाएगा डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम द प्रॉप्स, which is equals to this dot props। अब मुझे इसका फ़ायदा कहाँ पे होने जा रहा है? अब मेरा पहला जो मतलब है वो ये है कि स्टाइल्स और प्रॉप्स जब रेंडर अपनी रिक्वेस्ट करेगा, तो वो एक्चुअली इन रिटर्न क्या देगा? इन रिटर्न वो मुझे क्या देगा? मैं कहता हूँ इन रिटर्न में मुझे कुछ ना दो, मुझे एक इमेज का टैग दे दो, इमेज, और इसके इमेज के अंदर मेरे पास कुछ स्टाइल होगा। स्टाइल, अब डिपेंडेंट स्टाइल है ये। अब ये डिपेंड किस पे कर रहा है?
ये स्टाइल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्टाइल डिपेंड कर रहा है 2 आर्ग्यूमेंट्स पे। एक फ्लैग है, एक्टिव फ्लैग है, 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एंड इसकी कंपैरिजन में हमारे पास क्या है? इमेज। एंड कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा स्टाइल्स, STYLES स्टाइल्स डॉट एक्टिव फ्लैग। अब मैं इसको एक्टिव फ्लैग को असाइन कर दूंगा। अब कंसर्न ये है कि ये एक्टिव फ्लैग हमारे किस काम आएगा प्रॉपरली। तो ये डायरेक्ट तो किसी काम नहीं आएगा। हाँ, सोर्स में से SO URCES सोर्सेज, URCES सोर्सेज, सोर्सेज में से हम कॉल बैक कर सकते हैं किसको बोला? एसेट को। और एसेट में मेरे पास क्या है? दैट इज एन इमेज, जिसको हम स्मॉल इमेज कहते हैं। एंड मैं इमेज का टैग बंद कर देता हूँ। अब मेरे पास हर तरह का डेटा अवेलेबल है अभी। फॉर द टाइम I have everything that I need to use in this specific file. अब कंसर्न ये आ रहा है कि स्टाइल बार बार जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। स्टाइल जो है वो बार बार टर्न ऑफ हो जाता है। तो कोई इश्यू नहीं है। हम क्या काम करते हैं? कॉन्स्टेंट्स STYLES स्टाइल्स, ये लो, इसको हम स्टाइल शीट दे देते हैं। अब यहाँ पे असाइन कर देते हैं, वहाँ पे उसका स्टाइल जो है वो ठीक हो जाएगा। अब स्टाइल के पास STYLE स्टाइल शीट्स जो हमने ऊपर इंपोर्ट की थी डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे इसको क्रिएट करने में हमारे पास फ्लैग यूज होगा। फ्लैग जो ऑलरेडी हम बाकी सारी चीज़ें भी यूटिलाइज करते हैं, HEI GHT हाइट, इट्स अप टू यू कि आपने उस VR इमेज की हाइट कितनी देनी है। width, it's totally up to you how you're gonna add the width. And MARGIN margin right, left right और कुछ भी यानी कि दे सकते मार्जिन राइट। मार्जिन राइट में हम, अच्छा हाँ, इसमें हम 20 PX भी दे सकते हैं। इसको हम PX भी लिख सकते हैं और खाली भी 20 लिखोगे तो वो PX से ही आएगा। और ओपिसिटी, इसको कहते हैं कि आपने ऑक्यूपाई क्या किया हुआ है, कितना आपने एरिया ऑक्यूपाई करना है। तो आप 0.7% कर दो, इट मीन कि 70% आप एरिया ऑक्यूपाई कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस, आप इसको कम भी कर सकते हो। तो मेरे पास एंड क्या बचा? एक बचा एक्टिव फ्लैग, एक मेरे पास एक्टिव फ्लैग बचा, और उस फ्लैग के अंदर वाला पोर्शन बन गया, और वो ये था ओपिसिटी। ऑक्यूपाई कितना किया है? आउट ऑफ 1, एंड दैट्स गोइंग टू बी क्लोज। एक तो बनी ये JS जिसको हम कह रहे हैं कि flag.js है, और फ्लैग के पार्ट में एक JS बन गई। दूसरी हमने कंपोनेंट में दूसरी एक JS फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रख दूंगा EART। अच्छा, बल्कि आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। मैं इसका नाम रख देता हूँ, आपके नाम से रख देता हूँ, JW। चलो, अब मेरे पास जो अब अगला कंसर्न आ रहा है वो JW का है। इसमें हम उसको डिफरेंट फंक्शंस देंगे कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्यों करना है, कैसे करना है, और उसको करने का पीछे मकसद क्या होगा। So I'm going to use import again REACT react from react, जैसे हम चीज़ें करते हुए आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम रहने वाली हैं, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जैसे एनिमेटेड एसेट्स, ये वाला CT एसेट्स। नाउ जैसे मैंने आपको कल कहा था कि हम व्यू मॉडल और व्यू करेंगे, तो हमने मॉडल एक बना लिया। नाउ व्यू की बारी आ गई। फ्रॉम React-360 हम डिव टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिव टूल्स हमारे लिए अभी नुकसानदेह है। अब
मुझे एक बनानी है, इंपोर्ट किया ENTITY एंटिटी फ्रॉम रिएक्ट की जो अपनी एंटिटी है ENTITY एंटिटी। अब ये रिएक्ट की जो अपनी एंटिटी है वही कॉल होगी, और एजिंग मतलब एज, इसको इजी फॉर्म में भी कह सकते हो, ASING एजिंग फ्रॉम द सेम फाइल ASING एजिंग। रिएक्ट के अंदर अपने कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके थ्रू हम इससे काम ले सकते हैं। import AM ambiguous light, तो ये 360 कंप्लीट देगा, लेकिन हमें इसकी वेब वाली नहीं चाहिए, हमें इसकी वेब वाली एप्लीकेशन से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम्बिगुएट लाइट चाहिए, हमें व्यू का डायरेक्ट इसका कोई इंटरफेस नहीं चाहिए, हमें जस्ट इतना पोर्शन चाहिए, दैट्स इट। जैसे मैंने कहा कि ये वेब में भी यूज़ होती है और उसमें भी यूज़ होती है, तो इसको हम नहीं करेंगे। एंड द लास्ट थिंग इन इम्पोर्ट दैट इज़, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेता हूँ, एक और चीज़ आती है पॉइंट लाइट, POINT पॉइंट लाइट। इसको भी अगेन हम रिएक्ट से नहीं लेके आएंगे, इसको हम डायरेक्ट सिर्फ पॉइंट लाइट को यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि हमारे पास जो डेटा, जो हमने चीज़ें करनी है वो इसके अकॉर्डिंग ही हो और सिंपल वे के अंदर हो, ना कि इसमें कोई और चीज़ हो। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सा, ANIMATED एनिमेटेड, ENTITY एंटिटी, एनिमेटेड एंटिटी है, जिसको अब मैं एज अ ऑब्जेक्ट कॉल करने जा रहा हूँ, एनिमेटेड डॉट क्रिएट ANIMAT एनिमेटेड कंपोनेंट ENTITY। अब ये एज अ ऑब्जेक्ट कॉल होने जा रहा है, अब एज अ क्या जा रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट कॉल होने जा रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि कांस्टेंट उसको लो अंडरस्कोर जंपिंग वैल्यू, मतलब वो शिफ्ट करे अपनी वैल्यू को कितने तक, विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको माइनर सी जंप दे देता हूँ, 1.5 की दे देते हैं। अच्छा, माइनर जंप 1.5 का आ गया। अब मतलब जो वो एनिमेशन होगी, माइनर जंप ये होता है कि वो अगर हिल रही है तो वो 1.5 पे हिलेगी स्केल पे। तो अगर मैं दूसरा कांस्टेंट एक और बनाता हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, इसने टॉप जंप, इसकी वैल्यू क्या होगी, टॉप जंप अंडरस्कोर वैल्यू, तो यानी कि कितना मैक्सिमम स्पीड्स पे जा सकती है, तो वो भी मैं इसके आसपास ही रखूँगा, 1.8 कर देते हैं। अब हमारा काम स्टार्ट होने जा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट्स क्लास, मैंने क्लास कौन सी बनाई, JW की। एक्सटेंड कहाँ से करूँगा, अब ये एक्सटेंड्स react डॉट कंपोनेंट्स। अब फंक्शन स्टार्ट, मैं कहता हूँ मुझे एक ROTATION रोटेशन चाहिए, कि मेरा वो चीज़ जो है वो घूमे, और साथ ही मैं उसको न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ, न्यू एनिमेटेड। अब उसको न्यू ऑब्जेक्ट असाइन हुआ और उसकी वैल्यू अभी क्या है, वैल्यू अभी उसकी है 0। इसी तरह मैं उसको जंप वैल्यू दे देता हूँ, इज इक्वल्स टू अगेन न्यू एनिमेटेड डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो हमने ऊपर लिखी है, लो जंप वैल्यू, अब इसको हम कॉल करेंगे जंपिंग वैल्यू में। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा स्पिन का, स्पिन को कॉल करूंगा कि इसने स्पिन कितना होना है, तो दिस डॉट। अब रोटेशन, रोटेशन की जो सेट करते हैं वैल्यू, रोटेशन की सेट होगी वैल्यू, और स्टार्ट 0 से करते हैं, हमने डायरेक्ट कोई वैल्यू दी नहीं है। देन रोटेशन देने के बाद मैं इसको कहूँगा जो एनिमेटेड का जो ऑब्जेक्ट कॉल किया था, जो ऊपर ऑब्जेक्ट कॉल किया था, उसमें इसके टाइमिंग दे देते हैं, टाइमिंग दे देते हैं। टाइमिंग में क्या आएगा,
मैं कहता हूँ कि जब ये स्टार्ट हो, दिस डॉट रोटेशन स्टार्ट हो, जब ये स्टार्ट हो उसके फौरन बाद ही इसकी वर्किंग में भी चीज़ें आना शुरू हो जाए। तो टोटल यानी कि टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू, या टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 360 आउट ऑफ कितने में से, मैं इसको ड्यूरेशन दे देता हूँ तकरीबन 4000, मतलब ऑलमोस्ट 4000 सेकेंड्स, 4 सेकंड के बाद इसने, और ईजिंग में दे देता हूँ इसको, जिसमें इसने अपने आप को रोटेट करना है। तो वही फंक्शन ऊपर वाला कॉल EASING, एजिंग, एजिंग का फंक्शन कॉल होगा डॉट लीनियर, लीनियर, हाँ लीनियर, लीनियरिटी होती है जिसमें आपका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिंपल वे में चल रहा होता है, मतलब एक फ्लो में चल रहा होता है। और जैसे ही या है तो फ्लो स्टार्ट हो, अब जब फ्लो स्टार्ट होगा तो वो असाइन किसको होगा, वो इसी को असाइन कर देते हैं, दिस डॉट स्पिन को, वो इसी को ही असाइन कर देते हैं, दिस डॉट स्पिन को ही ये चीज़ असाइन कर देता है कि ठीक है वो इसी फंक्शनैलिटी के अंदर ही अपने आप को चले। अब मैं डिफरेंट जंपिंग वैल्यू दे देता हूँ, मैं जंप का भी एक फंक्शन वैल्यू के साथ ऐड करता हूँ, एंड डिफरेंट जंप का जो फंक्शन है वो विद वैल्यू going to add it every time while we are going to use the thing to let जो भी उसकी करंट value हुआ करेगी, and it depends on the current value how much we gonna get it from the previous one. The current value depends on the working value is a working value, the top which we had top jumping value, the top jump value, लेकिन we don't have that specific value, we don't have that specific value, तो top jump value को मैं assign करूँगा low jump value के साथ, और अब जो वैल्यू आएगी उसको असाइन करूँगा टॉप जंप वैल्यू में, एंड एनिमेट डॉट टाइमिंग अगेन, अब जो मेरे पास टाइमिंग आएगी वो उसके अकॉर्डिंग होगी जो मेरे पास दिस डॉट जंप वैल्यू ने दी है, BALU जंप वैल्यू ने जो अब मुझे वैल्यू दी है, और जंप वैल्यू ने जो मुझे जंप वैल्यू दी, ये गड़बड़ शायद आई डिड, ओके चलो कोई नहीं, खैर है, देखते हैं बाद में। अच्छा, जंप वैल्यू ने अब जो मुझे जंप वैल्यू दी है, ट्राई करेंगे कि इससे सही हो जाए, वी डोंट नीड टू गेट एनीथिंग इन ट्रबल। ओके, तो मैं अगेन उसको टू वैल्यू पे जाऊंगा, टू वैल्यू, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द करंट वैल्यू, और ड्यूरेशन इसकी हम बहुत माइनर ड्यूरेशन रखते हैं, duration is equals to 500, the minimum value that we are going to get, and the assets that we need is duration, ये हो गई, हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के साथ ही जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, अब इसके साथ साथ हम उसको असाइन कर देंगे दिस डॉट जंप, खाली जंप, अब खाली जंप, जंप में वैल्यू असाइन करेंगे करंट वैल्यू, उसको असाइन करेंगे करंट वैल्यू को। अब इससे होगा क्या, वेरी नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपन, अब मेरे पास जो कंपोनेंट्स हैं, क्या वो कंपोनेंट्स काम करेंगे, तो कंपोनेंट डिड माउंट बिल्ट इन फंक्शन, इसमें मेरे पास आएगा दिस डॉट स्पिन, एंड मेरे पास दूसरा आएगा दिस डॉट जंप वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी होगी, लो जंप वैल्यू, कि मेरा जो एनिमेशन इमेज है
वो हल्की सी जंप करे, ज़्यादा लंबी जो है वो जंप ना करे। जंप करने का मकसद ये है कि वो जब रोटेट करे या किसी भी चीज़ पे जाए तो वो नॉर्मल रहे। सो रेंडर रिटर्न, अब रिटर्न में जो मेरे पास व्यू जाएगा, जैसे मैंने कहा कि हम व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें जब से जो पहली चीज़ आएगी क्रिएट होके वो आएगी लाइट, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी, यस इंटेंसिटी, इसको हम कर देते हैं कि 1.0 द इंटेंसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द कलर डिफाइन इज इक्वल्स टू, मैं डिपेंड करता हूँ कि जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली ब्लैक ही रहे। एफ 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 बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लैक में ही रहेगा एंड गोइंग टू क्लोज इट। ओके, नाउ दूसरी हमने दी थी पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट, अब पॉइंट लाइट के फंक्शन में जो इंटेंसिटी है ऑटोमेटिकली ये हम देंगे इसको 1 पे, इंटेंसिटी 1। स्टाइल शीट, STYLE स्टाइल, स्टाइल पे जो चीज़ डिपेंडेंसी है वो है ट्रांसफॉर्म, आ गया ट्रांसफॉर्म, किस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसमें हम कोई चीज़ ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं इस इमेज को ट्रांसलेट करने जा रहा हूँ, ट्रांसलेट। अब जो इमेज ट्रांसलेट होगा उसकी एक डायमेंशंस हम रखते हैं 0, 1 एंड 5। यू कैन हैव इट टिल 7, 7 तक आप इसकी डायमेंशंस को रख सकते हो, लेकिन 7 से ज़्यादा इसकी डायमेंशंस नहीं रखोगे। एंड क्लोज इट। ओके, ये आ गई हमारे पास क्या कहते हैं पॉइंट लाइट। अब पॉइंट लाइट के बाद मेरे पास जो चीज़ है दैट इज एंटिटी, एनिमेटेड इंटेंटिटी, जो चीज़ मेरी रह गई है। एंड इसका मेरे पास आएगा सोर्स फाइल आएगी एंड दैट सोर्स फाइल डिपेंड्स ऑन और GLT32 GLTF2, एक इस पे डिपेंड करती है। ये इसका बर्डन फंक्शन है, एसेट्स जो हम यहाँ से क्लियर करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी लाइक JW, yes, and the working over JW dot GL, जो हमने लिखा GLTF2। अब ये वाली फंक्शनैलिटी डिपेंड करेगी कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे ट्रांसलेट करवानी है। तो इसको करने के फ़ौरन बाद आप सोर्स से बाहर आके स्टाइल लेके आओगे और जो स्टाइल की जो फाइल होगी इसमें हम सारा कुछ लिखेंगे। अब वो है क्या कि मैंने ट्रांसफॉर्म क्या किया, कितना किया, कहाँ से किया। तो मुझे यहाँ पे जो उसको चीज़ें देनी है दैट इज ट्रांसलेट वाई एक्सिस, कि मेरे वाई एक्सिस में वो क्या करेगा। तो दिस डॉट, जो भी मैंने जंप वैल्यू दी होगी वो आ जाएगी जंप वैल्यू। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज स्केल, उसका क्या होगा SCALE स्केल, स्केल में जिसमें हम उसको ये बताएंगे कि कितनी टाइमली वो अपने आप को रोटेट करे। एंड द थर्ड थिंग इज ROTAT, रोटेट वाई, वाई एक्सिस पे किस तरह रोटेट होगा। तो दिस डॉट रोटेशन को हम पूछेंगे कि वो किस हिसाब से उसने वाई पे रोटेट होना है। दैट्स इट। एंड ये कंप्लीट हो गया। दैट हाउ वी गोना यूज इन वर्किंग। और ये हमारे पास एक चीज़ हो गई वर्किंग ऑर्डर में, सिंपल वे में, जिसमें हमने कंपोनेंट्स में ये सिर्फ 2 चीज़ें बनाई और इसके अलावा हमने इसके कंपोनेंट्स में कोई चीज़ इसको नहीं ऐड की। अब कंसर्न ये रह जाएगा कि हमने जो चीज़ें क्रिएट करनी है उसमें स्टैटिक फाइल्स में वो क्या क्या होंगी।
उसमें क्या चीज़ कैसे क्रिएट होगी और उसका बफर व्यू या बाकी सारी चीज़ें कैसे बनेंगी। जो भी हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है आपके इस नाम से JW क्लिप के नाम से, तो ये एक्चुअली बनेगी हमारी फ़ाइल इसके अंदर जाके। इसको हम न्यू बनाएंगे, फ़ाइल देंगे एंड यहाँ पे इसका नाम रखेंगे JW.GLTF। अब ये फ़ाइल एक्सटेंशन को लिखा कैसे जाएगा या ये बनेगी कैसे, सो दैट्स द कंसर्न टू अस। और ये क्या कहलाती है फ़ाइल या ये क्या नहीं कहलाती, तो सिंपल हम इसको किसी भी उसमें डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यह आएगा सर्विस प्रोवाइड इंटरफेस के ऊपर, क्योंकि ये अब सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। हम इसको सास स्टाइल शीट भी रख सकते हैं और सर्विस रख सकते हैं, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो हम इसको सास पे रख सकते हैं जैसे हम कल कर रहे थे। तो अब ये जो फाइल है जो अब यहाँ पे हमें नज़र आएगी, वो इस पे एक्चुअली अब सारी स्टाइल शीट हम लिख सकते हैं या स्टाइल शीट ऐड कर सकते हैं। whatever we need to add things, वो हम इसकी सारी स्टाइल शीट पे इसको दे सकते हैं। तो इसमें स्टाइल शीट इसकी कैसे लिखी जाएगी, वो डिफरेंट होते हैं तरीके, जैसे आई एम गोइंग टू यूज़ ACCESSORS और इसकी स्टाइल शीट के अंदर हम बाकी सारी चीज़ों को भी ऐड करते जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम इसमें यही आएगी कि ये डायरेक्टली मुझे उसको एक्सेस नहीं करने देगी। तो मैं इसको चेंज करता हूँ सास से, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको सिंपल टेक्स्ट फाइल रखता हूँ ताकि जो मेरा सिंटैक्स है वो ख़राब ना हो, क्योंकि स्टाइल शीट में मुझे ये तंग करेगी चीज़ों को लेके। तो मैं इसको सिंपली JW.GLTF कर दूँगा और उसकी एक्सटेंशन सेट होगी। ओह शिट, अच्छा। इसकी एक्सटेंशन कब कहाँ से सेट होगी, इसकी एक्सटेंशन रीसेट नहीं हो सकती, चलें कोई नहीं। खैर इसकी जो चीज़ें लिखने वाली हैं वो फिर मैं आपको क्लास में आइडिया दे दूंगा कि हाउ यू गोना राइट द थिंग्स जो हमें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। साहस में जो चीज़ें हमने ऐड करनी है, एक तो वो चीज़ें हो जाएंगी। सेकंड, हमने इसके client.js जो इसका बना होता है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को ऐड अप करना है, कौन सी चीज़ों को ऐड नहीं करना, तो वो चीज़ें बस अब इसमें चीज़ें होती जाएंगी। जैसे इसने यहाँ पे वेब व्यू दिया हुआ है, हमें एक्चुअली वेब व्यू नहीं रिक्वायर्ड, सो वी नीड टू रीराइट ऑल दिस थिंग। हम रीराइट भी कर सकते हैं और डोंट वांट टू रीराइट, तो मैं यहाँ पे चीज़ें को ऐड कर देता हूँ। LOCATION लोकेशन, मुझे एक ही लोकेशन चाहिए, मुझे चाहिए उसकी सरफेस, मुझे चाहिए मॉड्यूल, so I'm going to use these things in it. अब before I'm going to use anything else, तो I'm going to make a class। यहाँ पे मैं एक क्लास डिज़ाइन करूँगा। क्लास बनेगी, क्लास किसकी होगी, क्लास TITLE टाइटल चेंजर, टाइटल चेंज CHANGR टाइटल चेंजर। एक्सटेंस कहाँ से होगी, मॉड्यूल से। अब इस मॉड्यूल में मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, एक मुझे रिक्वायर्ड होगा कंस्ट्रक्टर, ओके इसके अपने TRUCT और कंस्ट्रक्टर, और सुपर में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे TITLE टाइटल CHANGR टाइटल चेंजर, बस।
एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा चेंज TITLE टाइटल एज अ वेरिएबल और document dot title which is equals to welcome to, हम concatenate करने जा रहे हैं TITLE टाइटल। ये concatenation यूज होती है जब हम प्लस का साइन डालते हैं, इसको कहते हैं concatenate करना। concatenation, that's it। अब जो मेरी concatenation में जो चीज़ हुई है और जो हम आगे भी करेंगे जो concatenation, अच्छा अब यहाँ पे ये चीज़ एंड हुई, इसमें आके हमने क्या चीज़ चेंज करनी है, हमें यहाँ पे जब फुल स्क्रीन ट्रू वाली साइड है तो यहाँ से हम इसको NATIV नेटिव मॉड्यूल्स और नेटिव मॉड्यूल्स में कौन कौन से मॉड्यूल हमारे पास आएंगे, तो मैंने एक न्यू दिया था टाइटल चेंजर, एक नेटिव मॉड्यूल मेरे पास सिर्फ ये जाएगा एंड ऑप्शन। अब इसके बाद यहाँ के बाद मेरे पास जो चीज़ जाएगी दैट इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट पे मैं क्या करने लगा हूँ, मैं अपना एक फंक्शन डिज़ाइन करने लगा हूँ। उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ कि माई डेटा कर देता हूँ। माई डेटा इज इक्वल्स टू न्यू डेटा और न्यू डेटा में मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ दैट इज़ 460। अब ये वो डायमेंशन है जो मैं उसको ऐड करके दे रहा हूँ, तो इधर कर देता हूँ 800। Now these are the dimension that we are going to use, that I'm going to use. So data dot surface surface shape, data dot surface shape dot slender। सिंपल, उसकी सिलेंड्रिकल जो है वो शेप वो हो जाएगी। अब इसको हम डायरेक्ट सरफेस भी कर सकते हैं, मैं इसको डेटा करने की बजाय SURFACE सरफेस कर देता हूँ और इधर माय डेटा में भी इसको सरफेस से ही ऐड कर देता हूँ। सरफेस नहीं है, सरफेस है, ये सरफेस नहीं है, ये SURFACE सरफेस है, ये सरफेस जो कंस्ट्रक्टर से आएगी। यस, so it's going to be a surface again। यस, जो उसकी सिलेंड्रिकल विड्थ है वाइट है, ठीक हो गया। क्योंकि जो सरफेस है वो समथिंग एल्स है और ये वाली चीज़ है कुछ और है। अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये सिंपल वही रहेगा, रेंडर टू सरफेस आ गया, जैसे हमने इसको चेंज किया। अब क्रिएट रूट प्रोजेक्ट नेम और वही सारा कुछ आएगा। जब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जब इसको एक तो हमने सेट एज अ डिफ़ॉल्ट सरफेस कर दिया, वो उसकी वजह से एक सरफेस जो है वो डिफ़ॉल्ट भी सेट हो गई। लेकिन बिफोर आई एम गोइंग टू मेक इट एंड, मैं जो क्रिएट रूट है ये वाला, इसके अंदर वर्किंग हम करते हैं। अब वो वर्किंग क्या है, जो इनिशियल आ रहा है, जो इसके जो होते हैं वर्किंग के, इसके फ़ौरन बाद मैं एक चीज़ रिटर्न कर देता हूँ, वो ये होगा जो मेरे पास है माय डेटा। माय डेटा रिटर्न करूँगा और इसको यहाँ से डिफ़ॉल्ट सरफेस को मैं उड़ा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी डिफ़ॉल्ट चाहिए नहीं। अभी माय डेटा
माई डेटा यहाँ पे रिटर्न हुआ एंड डेटा को रिटर्न करते साथ ही अब मुझे जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो लिखने हैं, जैसे कांस्टेंट लोकेशन लोकेशन इज इक्वल्स टू, ऊपर से हमारे पास आएगी न्यू लोकेशन। अब उस न्यू लोकेशन में मैं इसके कंपोनेंट्स को असाइन करूँगा उस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप अपने कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी से रीअसाइन भी कर सकते हो, सो इट्स योर चॉइस कि आपने -1 देना है या -2 देना है। -1 ये होता है कि इजीली सेटेबल होते हैं कंपोनेंट्स, इनकी पोजीशन बहुत इजीली सेट हो जाती है, ये बहुत इजीली सेटेबल होते हैं और इनको आप किसी भी टाइम पे सेट कर सकते हो जो इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। क्योंकि जो बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक्चुअली सेट करने में उनको प्रॉब्लम जा रही होती है, वो अच्छी खासी फिर प्रॉब्लम बन भी जाती है बाद में, वो सेट होते भी नहीं है। तो अब मेरे पास यहाँ पे कंपोज़र ऑलरेडी है, कंपोजिट ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ R360 करूँगा। R360 यहाँ से सिर्फ मुझे चाहिए रेंडर टू लोकेशन, रेंडर टू लोकेशन कहाँ पे, R R360, ठीक है, रेंडर टू लोकेशन और CREAT क्रिएट रूट, किसका रूट, नाउ द रूट ऑफ व्हाट, JW जो क्लास बनाई थी, एंड उस क्लास को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, लोकेशन, एंड बाकी उसका सेट बैकग्राउंड है 360 वर्ल्ड और JPEG ऑटोमेटिकली उसमें है, सो यू कैन चेंज इट इफ़ यू नीड इट, एंड विंडोज़ इन इट। अच्छा, ये हमने की अपनी client डॉट JS की फाइल में चेंजेस जो हमें रिक्वायर्ड थी। इंडेक्स डॉट JS की चेंजेस, अब मैंने अभी ये नहीं लिखा, इसके अंदर ये चीज़ें लिखनी है क्योंकि ये डिपेंडेंसी है कि हाउ वी गोना राइट इट, और उसमें सिर्फ अभी ये इशू आ रहा है कि उसने उसकी फ़ाइल की ना एक्सटेंशन चेंज कर दी, सो आई हैव टू रीस्टार्ट इट, ताकि मैं इसके अंदर जो इसकी फ़ाइल्स हैं, जो डेटा फाइल्स होती हैं उसको इजीली लिख सकूं। तो जो इंडेक्स डॉट JS होता है उसमें जो चीज़ें हमने चेंज करनी होती हैं, वापस आता इंडेक्स डॉट JS में, तो इसमें सारा डेटा नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे मुझे जो चीज़ ऐड करनी है वो है कुछ चीज़ें जो मैंने लिखी थी, उसमें एक आएगा ASS एसेट्स आएंगे, एंड हमारे पास इसमें जो चीज़ एक और आएगी दैट इज़ ENVIRON इन्वायरमेंट, और हमारे पास आएगी प्रीफेच। इसके बाद मेरे पास व्यू है, ऑलरेडी है, इमेज है, नेटिव मॉड्यूल्स, NATIV नेटिव मॉड्यूल्स, एंड द लास्ट वन इज जो व्यू के एक्चुअली बाद आता है, दैट इज VR बटन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को उसके लिए रिक्वायर्ड होती है, सो इट्स गोइंग टू बी लाइक VR बटन। और इसमें अब हमें जो बाकी सारी चीज़ें चेंजेस चाहिए, जैसे हमें कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, तो ये तो सिंपल वो है जो चीज़ें हमें एक्चुअली उससे मिल रही होती हैं, लेकिन हमने जो चीज़ें लेनी है इम्पोर्ट फ्लैग फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैग, ऑटोमेटिकली आ गया जो मुझे चीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट JW फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ JW, सिंपल। इसके अलावा मुझे कुछ चीज़ नहीं ऐड करनी इसमें। हाँ, यहाँ पे मैं अब इसका कांस्टेंट करूँगा, क्या चीज़ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए टाइटल चेंजर जो हमने बनाया था, टाइटल चेंजर, और उसको मैं असाइन करूँगा नेटिव मॉड्यूल्स में से, बल्कि पूरे नेटिव मॉड्यूल ही देते हैं, उसके अंदर से चीज़ असाइन नहीं करते, उसको नेटिव मॉड्यूल पूरे ही ऐड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे अगर कोई डेटा देना है जो मेरे इमेजेस का होगा, या जो फ्लैग में जो मैं डेटा देना चाहता हूँ, वो सारा कुछ मेरा अब यहाँ पे आएगा, सो आई नीड डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस टू regenerate the data from here.
तो जो जितने भी इमेजेस होंगे या जितनी भी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी, सो वो मुझे अब यहाँ पे ऐड करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। मैं यहाँ पे इसको ऐसे ऐड कर सकता हूँ, कांस्टेंट। अब मुझे जो भी चीज़ 360 में दिखानी है, तो कांस्टेंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ थिंग्स, जो भी मुझे 360 के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड सम काइंड ऑफ इमेजेस, प्लेसेस और समथिंग लाइक इट। जो भी मुझे यहाँ पे चीज़ रिक्वायर्ड होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। एंड देन एक्सपोर्ट एग्जैक्टली एज इट इज़ ही चलेगा, सिर्फ इसमें जो चीज़ हम लोगों ने चीज़ ऐड करनी है वो ये होगी, ये एक्सपोर्ट हो ठीक है, जैसे भी चल रहा है इसको हम चलने देंगे, हम इसको कुछ चीज़ नहीं छेड़ेंगे। हाँ, लेकिन हमें जो चीज़ इसमें से चाहिए वो यहाँ पे चाहिए होगी, वो ये होगी स्टेट इज इक्वल्स टू। अब इस स्टेट में मुझे चाहिए एक्टिव फ्लैग, और एक्टिव फ्लैग की जो वैल्यू होगी वो भी एम्प्टी है। दैट्स इट। चेंज बैकग्राउंड है या इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेंडर खाली नहीं करेंगे। सो हमें जो रेंडर रिक्वेस्ट देनी है वो हर तरह को सेट करके दे रही है कि कौन सी रेंडर रिक्वेस्ट में क्या चीज़ जाएगी, कौन सी रेंडर रिक्वेस्ट में क्या ऐड होगा, क्यों ऐड होगा और किस तरह ऐड होगा। सो यहाँ पे रेंडर क्या होगा, अब रेंडर हमारे पास होगा फ्लैग्स, और इसकी रिटर्न में जो हमें चीज़ें चाहेंगी वो कुछ डिफरेंट होंगी। अब जैसे मेरे पास पहले जाएगा FRA फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट में की जो की होगी की इज इक्वल्स टू, वो रजिस्टर्ड होगी फ्लैग को। अब फ्लैग को रजिस्टर्ड होना इट मीन्स के फ्रेगमेंट का जो पार्ट होगा उसमें फिर हमारे पास दूसरी चीज़ें भी ऐड अप होती जाएंगी। अब वो क्या क्या होंगी और क्यों होंगी, कैसे होंगी, और वो सारा कुछ हम यहाँ पे अब लिखेंगे। जैसे हमारे पास अगली चीज़ आएगी दैट इज़ प्रीफेच सोर्स। सोर्स में से हमने जाना है एसेट्स में, एसेट्स के अंदर जो हमारे पास कोई भी डेटा होगा जो भी हमने नहीं रखा वो यहाँ पे आ जाएगा, लोकल पाथ उसका आ जाएगा। ये प्रीफिक्स, ये प्रीफेच हो गया। इसी तरह ही हमारे पास VR का बटन आ जाएगा, VR बटन। अब इसका जो डेटा होगा वो डिपेंडेंट होगा कि हमने इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस कैसे लिखने हैं। जैसे एक मेरे पास है जी, ये डिपेंडेंट होगा एंटर। जैसे मेरे पास होगा जी, मैंने जैसे ऑन ENTR एंटर। अब ऑन एंटर जब भी हम एंटर करेंगे कुछ ब्लैंक रहेगा क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं है। एंड देन वो चीज़ असाइन होगी दिस डॉट, किसको चीज़ असाइन करनी है, सेट स्टेट। और उस सेट स्टेट में हमारे पास क्या होगा, ACTIV एक्टिव FLAG फ्लैग, और वो किसको असाइन होगा, फ्लैग के वेरिएबल को। सिंपल। अब कहने का मकसद तो ये है कि इसकी जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो थोड़ा नहीं कुछ डिफरेंट है। ऑन एग्जिट, इसी तरह इसका भी हम बनाएंगे सेट स्टेट एक्टिव फंक्शन और ईच एंड एवरीथिंग। तो हर चीज़ जो है वो एक्चुअली में बनती जाएगी और ऐड होती जाएगी। अब कंसर्न हमारे पास ये आएगा कि हाउ वी गोना यूज ऑल दीज काइंड ऑफ फ्लैग्स एंड द फंक्शंस दैट वी गोना नीड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ऑन एग्जिस्ट पे भी हमारे पास सेम वैसे ही डेटा रहेगा जैसे एक्चुअली डेटा आ रहा होता है। तो कंसर्न फिर यही है कि कैसे, क्यों, कब, कहाँ। तो इसके बाद वाले फंक्शन हम फिर साथ साथ लिखते रहेंगे कि हम एक कंप्लीट जो एप्लीकेशन होती है उसको कैसे बना रहे होते हैं। सो आप जब यहाँ तक कर लोगे काम, देन डू हैव टू लेट मी नो, फिर मैं आपको उससे आगे एक्चुअली काम करवाऊँगा।